नेक्स्ट यूनिट आपका गाइज अगेन 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 6 आपका डेप्रीशिएशन। सो डेप्रीशिएशन यू विल गेट 2 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन। वन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन आपका अराउंड द डेप्रीशिएशन थिंग्स, मीन्स it can be around a theoretical aspect of depreciation, what is depreciation, what is the purpose of depreciation, या फिर it can be around आपका the method of depreciation, their fundamental aspect, ठीक है। do not miss this particular thing, fundamental aspect is very important, ठीक है। दूसरा आपका there will be one numerical for 2 marks or for 1 marks, 2 numericals will be based on numericals. When it comes to the numericals, so we have आपका in your book we have 4 methods. One is straight line method, another one is written down value method, and आपका unit of production method and sum of year digit method, ठीक है। These are the 4 method, and out of these particular one 90% time you will see question based on these 2 method, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका रिटन डाउन पहले तो आपका इनमें भी एक प्रोबेबिलिटी ये होगी एंड लीस्ट प्रोबेबिलिटी की दे विल गो विद द सम ऑफ ईयर डिजिट। अगर पूछते भी है बहुत आसान है, ठीक है। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड सबसे मतलब सबसे ज्यादा यूज होता है अकाउंटिंग के अंदर, व्हाइल वी डू द अकाउंटिंग और व्हाइल वी charge the depreciation on our assets, so we use this particular one. Written down value method which generally shows आपका exact amount of depreciation because it is something related to the output of that machine and the value we have spent it, ठीक है। Straight line method one of the simplest, just आपका value cost minus salvage value divide by number of years, इतना आसान है तो इसलिए क्वेश्चन कम पूछता है। Even this one also, now there can be one question you can face 1 marks or 2 marks question कि let's say वो आपको देगा आपका अबाउट लाइक दिस इज स्टेट लाइन मेथड एंड आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड आर वर्क ऑन द पासेस ऑफ टाइम, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्चुअल यूज बेस्ड मेथड। इस तरीके के स्टेटमेंट्स बेसिस पे भी दे विल बी जजिंग योर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो एट डाउन साइड 3 मार्क्स क्वेश्चन, वन इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल साइड एंड अनदर वन इज बेस्ड ऑन योर आपका न्यूमेरिकल साइड, ठीक है। वेरी इजी वन, वी हैव प्रैक्टिस आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन अराउंड all the 4 module, all the 4 आपका मेथड। तो रेफरेंसेस के लिए फॉर न्यूमेरिकल जस्ट डू वॉच यूनिट नंबर 6 आपका, ठीक है। इन यूनिट वाइज एमसीक्यूज आई विल मेक श्योर कि उससे ज्यादा आपको टफ या उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। दैट आई हैव ऑलरेडी डन एंड yesterday itself we practiced 2 areas from this particular one, ठीक है गाइस। चलो that will be Neeraj sir, if there will be question there will be around the rectification, ठीक है। मतलब what they'll ask you, जैसे there is a clerical error, ठीक है, they'll tell you this is the error, ठीक है। let's say we are running there is a XYZ company and X is the owner of that particular company, he withdraw money for the personal use, but accountant mistakenly use make a entry regarding the company expense stationery। let's say accountant ने क्या किया, उसने स्टेशनरी एक्सपेंस दिखा दिया जो कि गलत था, जो यहाँ पे यूज हुआ था पर्सनल एक्सपेंस के लिए ड्राइंग में होना चाहिए था, बट दे हैव शोन इन द स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू रेक्टिफाई। अब आपको रेक्टिफाई करने के लिए देगा, वो एक दे सकता है रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, या फिर वो आपको देगा ड्यूरिंग द रेक्टिफिकेशन which account will get debited or which account will get credited, so this sort of question you will get from that particular one, ठीक है सर। so depreciation आपका दिस इज हाफ मार्क्स, ठीक है। ये हाफ मार्क्स की जर्नी है आपकी, थोड़ा सा ध्यान रखिए अगर पूछ लेगा तो, ठीक है। सो व्हाट वी रिक्वायर टू कैलकुलेट दीज आर द वन, ठीक है। आई होप यू गाइस हैव गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड ऑल, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन मेथड आपका वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड। लेट्स से the asset value is let's say the purchase cost is आपका 1 lakh and salvage value is आपका suppose that 10,000 and the useful life of the machine or आपका economic life of the machine is suppose that 10 years. So if they ask you to calculate depreciation by using straight line method, so what will be our depreciation? So it is आपका कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट इज आपका कितना 1 लाख माइनस आपका 10,000 डिवाइड बाय 10, ठीक है। सो इट इज आपका 9,000, ठीक है। 90 मतलब लाइक 90,000 डिवाइड बाय 10, तो 9,000 विल बी योर आंसर फॉर दिस वन। एवरीवन गाइस क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है अभी भी बता दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, कोई मतलब देयर इज नो अभी ऐसा कोई रिग्रेट वाली चीज नहीं होनी चाहिए, कि यार बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं आता है ऑल।
बट यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल भी अगर ऐसा क्वेश्चन देता है, लाइक इट इज अ काइंड ऑफ फ्री क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। अगर कोई डाउट है किसी एरिया में तो आप बताइए, आई विल बी हेल्पिंग यू विद दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड, ठीक है। अब मेरे को जो लगता है, मैंने आपको ने क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। if they want to make this particular question complex, what they'll do, आपका they'll link with the written down value method, ठीक है। कैसे written down value method के साथ लिंक करेगा, वो आपको बोलेगा कि there is, मैंने क्वेश्चन कराया भी है आपको ये, ठीक है, कि जैसे there is a आपका we purchase of machinery, आपका worth rupees 10 lakh, आपका depreciation rate is suppose that 10%, ठीक है। For first 3 years we are using written down value method, and after 3 years for the rest of the life of that useful life of the machine, we are using आपका written down value method, sorry, straight line method. So now they'll ask you to calculate depreciation for 4th year या 5th year, तो 4th बोले या 10th बोले हमेशा सेम होगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट depreciation for 3 years by using written down value method, then after that whatever value will you will get, so divide by the useful life, you will get the remaining life आपका, then you will be able to answer that particular one, ठीक है दोस्तों। तो written down value method one of the, मेरा बिट इस पे है इस बार आपका, ठीक है। दिस इज माय पर्सनल इंटेंशन, सॉरी आपका, मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक दिल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो अगर आपको नहीं आता है तो बताइए, मैं आपको बताता हूँ अभी, फिर एग्जाम के बाद मत बोलिएगा कि सर आया था बट हम सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। तो बताओ, सो दिस इज द डेप्रिसिएशन मेथड। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, आई विल क्विकली समराइज दिस वन, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमने समझा, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या सीन है आपका, कि आपका जैसे वी परचेज देयर इज अ मशीन वर्थ रुपीज 1 लाख, ठीक है। सेल्वेज वैल्यू कितना था आपका 10,000, एंड आपका डेप्रीशिएशन रेट, यहाँ पे फिक्स रेट रहेगा डेप्रीशिएशन का, इसमें हम इसमें लगा लेते हैं, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन रेट इज सपोज दैट 10%, ठीक है। सो अब इफ वी कैलकुलेट आपका बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और बाय यूजिंग आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो हाउ इट विल चेंज आपका, अगर डाउट होगा कोई बताइएगा, ठीक है। So straight line method, what will be your depreciation? So your depreciation will be आपका 9,000. How we reach to 9,000? Cost minus salvage value 90,000, ठीक है, का 10% is आपका 9,000, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर आपका, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एवरी ईयर, ठीक है, इट विल बी रिमेन सेम आपका कांस्टेंट 9,000। But in case of written down value method, when it comes to the written down value method, first year depreciation will be same, ठीक है, but the remaining journey will be different। कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, आपका depreciation base into आपका depreciation rate, ठीक है। जैसे क्या होगा, बुक वैल्यू बेसिकली आपका, ठीक है, डिक्लाइनिंग बैलेंस भी इसको हम बोलते हैं, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी आपका क्या होगा, जैसे कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, ठीक है, सेल्वेज वैल्यू इनटू आपका परसेंटेज, ठीक है, इट इज हाउ मच 9,000। तो पहले साल का 9,000 है, ठीक है, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू इट इज आपका 90,000, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर declining balance, you have to calculate the declining balance or the book value of the asset at the end of first year. So book value at the end of first year is how much, 90,000 minus 9,000, which is आपका 90,000 minus 9,000 equal to 81,000, ठीक है। This is the book value at the end of second year। तो अब second year depreciation will be आपका कैसे निकालेंगे, 81,000 का 10%, डेप्रिसिएशन रेट विल बी रिमेन सेम, ठीक है। तो आपका कितना परसेंट, 10%, सो इट इज इक्वल टू आपका हाउ मच 8100, ठीक है। ऐसे ही देन यू हैव टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस 8100 आपका, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा दैट विल बी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। नाउ देयर विल बी टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अराउंड आपका कि what is the depreciation amount at the end of second year, ठीक है, और what is the depreciation charge for second year, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 8100। and if they ask you question कि what is the book value of the asset at the end of second year, तो आपका 81,000 minus 8100 whatever the value, that is your answer for this one। और इन सेम क्वेश्चन आपका दो ऑप्शन के साथ वो पूछ सकते हैं कॉमा करके, ठीक है। तो दिस इज द वन, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी पूछा जा सकता है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कैसे होगा कि इन रिटन डाउन वैल्यू मेथड कल हमने प्रैक्टिस किया था, यस्टरडे ओनली वी प्रैक्टिस अराउंड दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है।
सो व्हेन इट कम्स टू द वैल्यूएशन आपका, ठीक है, सो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में व्हाट वी यूजुअली डू कि इनिशियली वी चार्ज हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वी अज्यूम कि दैट मशीन कैन प्रोड्यूस हायर अमाउंट, give higher outputs in the beginning years and all, ठीक है, that is the logic. So that's why initially higher amounts, फिर आपका लोअर, इसके बाद और कम आपका होगा, ठीक है. अब वो एक स्टेटमेंट को थोड़ा इधर उधर कर लेगा एंड यू विल गेट कंफ्यूज. इफ यू हैव इन लाइक ये चीज आपको समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस वन. क्लियर है गाइस सबको? नो डाउट? हाँ भाई, ओके, हाँ शिवम सर बिल्कुल सही. चलो एवरीवन गाइस क्लियर ना? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो. एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और एग्जाम तो याद रखो बढ़िया से, उसके बाद फिर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. फिर आरबीडब्ल्यू में डालना है हमें, सो ऐसा बिल्कुल फीड करना है, निकालना है, ठीक है. और फिर सीआईवी के अंदर लाइक विदाउट कॉन्सेप्ट, फिर वहां पे सीआईवी में मत बोलना कि सर एक हफ्ता रह गया है अब हमें करा दो, नहीं हो पाएगा, नेवर, ठीक है. चलो, सो रिटन डाउन वैल्यू मेथड आपका, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर वैल्यू आपका डिक्लाइनिंग बैलेंस इनटू परसेंटेज रेट. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. अब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे समझोगे? देखो, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इट इज आपका यूज बेस्ड मेथड. इसको हम क्या बोलते हैं? आपका यूज बेस्ड मेथड, ठीक है. इट इज कॉल्ड आपका यूज बेस्ड मेथड. यूज एक्चुअल यूजेस, लेट्स से वी परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, वी परचेज ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज आपका लेट्स से 1 लाख, ठीक है, छोटे छोटे फिगर ले रहा हूँ, ठीक है. इसका जो आउटपुट है, ठीक है, लाइफ टाइम कैपेसिटी जो इसकी है, ठीक है, जो लाइफ टाइम कैपेसिटी है, इट कैन गिव अस अ प्रोडक्शन ऑफ सपोज दैट 10 लाख यूनिट, ठीक है. तो हमने क्या करा, वी परचेज ऑफ मशीनरी, पेन मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, ठीक है, फॉर रुपीज 1 लाख, एंड दिस मशीनरी विल गिव एन आउटपुट ऑफ आपका 10 लाख, इट कैन प्रोड्यूस 10 लाख पेन, ठीक है. एंड सपोज दैट द स्क्रैप वैल्यू और सैलवेज वैल्यू इज आपका 20,000, ठीक है. बहुत अच्छी मशीन है ये. अब दिस इज योर आपका डेटा, ठीक है. नाउ फॉर फर्स्ट ईयर, अब क्या हो रहा है यहाँ पे? फर्स्ट ईयर लेट्स से वी कंज्यूम आउट ऑफ 10 लाख यूनिट, वी कंज्यूम 3 लाख यूनिट आपका, ठीक है, वी प्रोड्यूस 3 लाख यूनिट. सो डेप्रिसिएशन, हाउ विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? आपका डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एक्चुअल यूजेस 3 लाख डिवाइड बाय लाइफ टाइम कैपेसिटी आपका 10 लाख इनटू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, ठीक है, विच इज आपका कितना है? 1,20,80,000, ठीक है, 80,000. तो दिस इज योर डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है. दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर. आउटकम बताओ कितना होगा? इसका आउटकम कैलकुलेट करके बताओ गाइस, नींद आपकी भागेगी थोड़ा सा, ठीक है. सेकेंड ईयर आपका, सेकेंड ईयर कैसे निकालेंगे? लेट्स से सेकेंड ईयर आउटपुट इज आपका, सेकेंड ईयर यूजेस और आउटपुट इज आपका सपोज दैट 25,000, ठीक है, 25,000. सो हाउ वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? 25,000 डिवाइड बाय आपका कितना? 1 लाख, कितना है? 10 लाख इंटू 80,000, ठीक है. ऐसे ही आपका थर्ड ईयर का जो भी नंबर है, सिंपल सा एग्जैक्ट यूज बेस, कि हमने मशीन पे खर्च किया है कितना? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख हमने खर्च किया है, सॉरी 80,000 खर्च किया है, क्योंकि 20,000 हमें वापस मिल जाएगा. वी हैव स्पेंड 80,000 because 20,000 will get back while we'll sell this particular machine, ठीक है. So now we have 10 lakh unit, that 80,000 will give us 10 lakh units. So year 1 आपका we spend we use 3 lakh unit, year 2 we spend use आपका 25,000 और the whatever the numbers आपका, ठीक है. तो इस तरीके से we'll be able to define this one, ठीक है. क्लियर है सकेश सर? यस, हाँ बिल्कुल. रिमेनिंग गाइस अंडरस्टूड? हाँ है ना? एक बार चलो सब लोग हाँ ना बता दो, ठीक है. सो तो नहीं गए ना? आधे लोग ऐसे पता नहीं वैसे सो गए, काम बहुत होता है यार बैंक में. देखो यार, एक हफ्ते की बात है, बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से मेहनत कर लेते हैं एक हफ्ता, उसके बाद फिर आराम से रिलैक्स करना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. इज दिस क्लियर गाइस? एवरीवन दिस इज क्लियर? से यस और नो. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है. कल के बाद हमें बस एएफएम पे ना कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करना. आज बैठते हैं आराम से 1 बजे तक आपका, ठीक है, 1 बजे तक का टाइम मांगूंगा. कल सुबह नहीं करेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं. पीपीबी आपका विल बी कवरिंग थ्रू बी और डी एंड सी एक साथ कर लेंगे, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन कि आप लोग यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत कर रहे हो, ठीक है. सो एक बार इसको रीड आउट भी कर लो. आफ्टर मॉड्यूल ए आई गिव यू 5 मिनट ब्रेक, ठीक है. देन बी आपका, बी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल है, बहुत सारा होमवर्क है. सी टाइम लेगा, डी जल्दी हो जाएगा, ठीक है. इस तरीके से चलेंगे, ठीक है. चलो, हाय सर Ramakrishna sir, you getting these particular thing clearly ना? If you have any doubt please do let me know, ठीक है.
चलो, सो दिस इज द वन, जैसे ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा सबसे, ठीक है। सो कंपनी परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग फॉर 20 lakhs, ठीक है, एंड परचेज कॉस्ट इज आपका 1,10,000, स्क्रैप वैल्यू इज दिस, ठीक है। फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज आपका 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइड बाय 20 lakhs इनटू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू 1 लाख, आउटकम इज योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। हमने बहुत प्रैक्टिस किया है इसको, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। सम ऑफ ईयर इज इट लीस्ट इंपॉर्टेंट बट स्टिल बहुत आसान है, सुडोकू है। हाउ यू कैलकुलेट सम ऑफ ईयर डिजिट, दिस इज द ओनली थिंग, ठीक है। लेट्स से द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 5 ईयर, तो 5 ईयर अगर उसका यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर है, तो हाउ यू विल कैलकुलेट सम ऑफ ईयर, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, बट अगर ऐसे लिखोगे ना तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल अगर थोड़ा सा लो हुआ गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ कैसे होगा बताऊंगा अभी, ठीक है। सो इट इज आपका कितना 15 ईयर्स, ठीक है, 15 ईयर्स। तो इट इज आपका रिमेनिंग लाइफ, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए इफ यू आर कैलकुलेटिंग, तो रिमेनिंग लाइफ कितना है आपका 5 साल है, डिवाइड बाय 15 इनटू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी आपका 4 डिवाइड बाय 15 इनटू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू। अब देखो मैंने आपको ऐसे लिखने के लिए क्यों बोला, why we are writing in this particular one, we can also write 1 2 3 4 5। the problem is in like in hurry worry what we will do, अगर फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करना है, अगर मैंने इसको कर दिया 1 डिवाइड बाय 15, आपका सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड गो विद दिस डायरेक्शन, ठीक है। अंडरस्टूड गाइस। डेप्रिशिएशन, ठीक है, डेप्रिशिएशन आई हैव डन अ सिंगल सेशन, ठीक है। do was that session आपका जहाँ पे we have covered all the numericals and all different type of varieties of numericals and all, ठीक है। But see how you'll see question based on depreciation, sorry, one is around the one question is around आपका one question will be around the theoretical aspect. So many times they ask 1 marks question on theoretical also, ठीक है, because people maximum they prepare for the numericals and all, ठीक है। Another, for sure there will be numerical questions, okay. In some shift they ask 2 questions for 4 marks also, 2 marks numericals and all. In some shift you will see 1 question, or it can be a combination of आपका straight line and आपका written down also, ठीक है। So the one question is related to theoretical aspect of depreciation on your screen. Please go through this particular one and try to answer this particular one, ठीक है। So depreciation is only caused by physical wear and tear? No, it can be due to आपका efflux effect, or it can be due to efflux effect, or it can be due to obsolescence, ठीक है। So let's say you purchase a machinery for the office purpose, we purchase a laptop for office purpose, we didn't open that particular one for 1 year, automatically the value of that machine will come down, ठीक है, that is efflux effect, ठीक है। It can be obsolescence or any other reason also, ठीक है। Depreciation is recognized as an expense on a profit and loss account over the asset useful life, regardless of whether the asset is used or not. So statement, if you come to the statement too, it is 100% true. Obsolescence is the cause of depreciation that occur due to technological advancement, yes, or changes in market demands and all. Depreciation result in reduction in the book value of asset. It does not affect the market price and all. But it does not affect the market prices of the asset. It will affect the market prices also. आपका, ठीक है, this is wrong. This is kind of irrelevant statement basically, ठीक है। The passes of time alone can be a depreciation even if the asset is not physically used. हाँ बिल्कुल सही, आपका efflux effect, it is called efflux effect, ठीक है। तो 235 means option C should be right answer for this one. What you guys have mentioned? Yes, option C is the right answer. Very good guys, awesome. चलो आगे बढ़ते हैं। Accounting entry for providing depreciation, ठीक है। So when how we account the depreciation, this can be 1 half marks question, हाँ ठीक है, this year। बताओ, whoever will mark correct answer for this one, they'll get half marks this year। चलो बताओ for sure। डेप्रिशिएशन इज एन एक्सपेंस आपका, ठीक है। सो इट इज एन एक्सपेंस, दैट मीन्स इट इज आपका, किस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, डेप्रिशिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट आपका, ठीक है। यस, हाँ, तो ऑप्शन ए ही सही है आपका, ऑप्शन ए ओनली शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन, यस। सो डेप्रिशिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट आपका, ठीक है।
एंड अल्टरनेटिव आपका डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, इफ यू आर मेकिंग प्रोविजन, इट इज आपका प्रोविजन, ठीक है, फॉर इफ दे आस्क स्पेसिफिकली अराउंड द प्रोविजन थिंग्स, इट विल बी प्रोविजन आपका, ठीक है। ए विल बी राइट आंसर गाइस, व्हाई पीपल आर सेइंग सी, आपका एसेट टू डेप्रिसिएशन नहीं, ठीक है, इट इज आपका एक्सपेंस, सो इट इज आपका व्हाट गोज आउट फर्स्ट, उसको निकालो आप लोग, ठीक है, सो दैट इज द वन, so this is the one, so depreciation is amount is generally good with this particular one, ठीक है, so that will be this will be the right entry for this one. Maximum people mark the wrong answer, okay, हाँ, only JP Yadav sir mark the correct answer and Neeraj sir mark the correct answer for this one. You guys got the half marks for this one. चलो next one, straight line method, very simple method, ठीक है, 1 marks. चलो I'll give you 1 marks, and I have done so many session around this particular one, and even our unit wise practice also, ठीक है, I have we have done one session on unit wise practice. I have shared with you also. I have created one playlist also, ठीक है, so in that particular case we have done so many आपका we have included so many examples or numericals around all the 4 modules, ठीक है, we have 4 method in your book. So it is straight line method, आपका unit of production, written down value method, and आपका sum of year digit, ठीक है. So what will be your correct answer guys? I just want to check how you guys are practicing and preparing आपका, ठीक है. So straight line method, so machine value is आपका 5 lakh, ठीक है, estimated useful life is 5 year, scrap value is 50,000, ठीक है. So a depreciation base आपका first year only you have to calculate the depreciation amount, and the another one is book value. Book value is basically आपका the base minus depreciation. So how you will calculate this particular one? Your asset value, a depreciation base is like how much? Depreciation base is आपका asset value 5 lakh minus 50,000, ठीक है, it is equal to 4.50 lakh, ठीक है. So now how you calculate depreciation by using straight line method? It is आपका 10 divide by number of years or useful life, ठीक है. So asset value divide by आपका useful life, ठीक है. So it is how much? आपका 4.5 lakh divide by how many years? It is 5 years, ठीक है, divide by 5. So what will be your outcome, ठीक है, what will be your outcome? What is the number, ठीक है, B आपका, people are saying B, and whatever the numbers will come, so you have to minus from this particular one, 4.5 lakhs आपका, you will reach to the numbers. I hope you guys are doing well. Yes, हाँ 90,000, very true. B आपका very good, ठीक है. So 5 lakh minus 90,000, so it is 4 lakh 10,000, so that is your आपका value. Very good guys, awesome, बहुत बढ़िया. चलो next one, true about the written down value method, ठीक है. This question was part of October 2023, ठीक है. I have given that particular examination in October 2023. In that shift there was 0 question around the numericals, but there were 2 question around this kind of things, ठीक है. So that's why I always used to say you have to prepare around these particular things also, ठीक है. So what will be your correct answer? True regarding the written down value method of depreciation. Depreciation under written down value method is calculated on original cost of assets every year, ठीक है. And how you will calculate the original cost आपका, ठीक है. So it is आपका, it is not the original cost is purchase cost, it is on the आपका declining balance, it is also known as declining balance method, ठीक है. So the asset value minus depreciation for the given period. So first one is wrong आपका, ठीक है. The written down value method assume a constant depreciation rate every year, ठीक है. हाँ, constant rate means like 10%, 15% वाला thing, ठीक है. That's, let's say we have purchased an asset and the rate of depreciation is fixed आपका. This is true, ठीक है. This is not about the amount, this is about the rate. Like let's say we purchase an asset of 1 lakh rupees and depreciation is 10%, ठीक है. The useful life is 5 years. So every year we'll account a depreciation of 5%. So first year depreciation will be आपका 1 lakh, 10% of 1 lakh, that is 10,000. अब at the end of first year asset value will be 90,000, ठीक है. 90,000 means आपका 1 lakh minus this 10,000 depreciation, ठीक है. It is 90,000, ठीक है. 1 lakh minus 10,000. So second year depreciation will be आपका 90,000 into 10%, ठीक है. That is how much? आपका 9,000. So second year depreciation will be 9,000 and book value will be आपका this 90,000 minus 9,000, which is 81,000, ठीक है. So this is the one, ठीक है. The written down value method is more relevant for asset that perform in their initial years. Obviously yes, we are charging high depreciation in the initial year because
we are getting high productivity. First year we charge 10,000, second year आपका 9,000 and next year it is आपका 8,100, ठीक है, because initially that asset is giving more productivity to us, ठीक है. The later year depreciation under written down value method tend to be higher. No, lower आपका, it is lower. Here it is 10,000, here it is 8,100. आपका the total depreciation and repair expenditure tend to balance out over the asset useful life years and all. ठीक है, this is true, ठीक है. Sorry, what was the explanation क्या था आपका, इसका देख लेना एक बार क्या था. Correct answer, what is the right answer? You guys are mentioning D. 2, 3, 2, 3, 5, 2, 3, 5, ठीक है. 2 no guys, option D will be right answer, ठीक है. Why you guys are mentioning B? हाँ जया आपका JP sir and others, D will be right answer guys, D will be right answer. This B you guys have 4. This is the wrong one na. Higher in, let's see, later year they have mentioned higher. First earlier it will be at higher side. First year it is 10,000, later it become 9,000, then it become 8,100. In next year it will be more decline, ठीक है. That is the logic. I hope you understood this particular case. समझ में आया ना सबको, ठीक है. So next one guys, consider the following statement regarding unit of production आपका, ठीक है. Unit of production method, ठीक है. So this is the method which basically which shows the exact number of depreciation in proportion to their uses, ठीक है. So basically let's say we have purchase of machinery, ठीक है. We purchase of machinery which can produce 5 lakh unit, ठीक है, which can produce 5 lakh unit, and we have spent let's say 5 lakh rupees on this particular machinery. That means 1 unit is equal to 1 आपका rupee, ठीक है. So now in first year, let's say first year we have consumed or we have produced 3 lakh unit. That means depreciation will be आपका 3 lakh, ठीक है. Second year we produce आपका 1 lakh unit, so आपका according to this 1 lakh. Third year we produce आपका 50,000, so depreciation will be आपका 50,000, something like this. Exact use based method आपका, ठीक है. So it is suitable for asset whose depreciation depend on uses rather than the time. 100% true. A statement is correct. समझ में आ रहा है सबको, ठीक है. It provide a less accurate measure. No, it provide the like most accurate method. ठीक है, this is wrong, ठीक है. It require detailed tracking of production and used to calculate depreciation. Yes, 1 and 3 are correct. So C will be correct answer for this particular. You guys are getting these particular thing clearly now. ज़्यादा स्पीड तो नहीं जा रहे हैं, सही है आपका, ठीक है. Everything is fine so far guys. So what I'll recommend, just go through the concept things and all, ठीक है, before coming to these particular session, or you can re-watch these particular things आपका, but I'll recommend कि just build your schedule accordingly, ठीक है. So if you have, there are 3 hours and 2 hours videos, that's it, ठीक है, for the concept things and all. 3 hours you can watch in the speed and you can summarize things and all right. And PDF I have already uploaded, so you can see at the आपका that note section and all, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. A machine, so now you have to use sum of year digit. Very less chances to ask question around this one, ठीक है. और जो हमारे जो यूनिट वाइज प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी वी हैव डन 3-4 क्वेश्चन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बट स्टिल यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है. अ मशीन परचेज 10,000, एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू इज 1,000, यूजफुल लाइफ इज 4 years, सम ऑफ ईयर डिजिट, ठीक है. सो यू हैव टू यूज sum of year digit method in this particular case, ठीक है. So how we calculate depreciation by using sum of year digit method, ठीक है. So first you have to calculate sum of years, ठीक है. Sum of year digit, how you will calculate? 4 years means आपका 4 plus 3 plus 2 plus 1 which is equal to 10 आपका, ठीक है. So sum of year digit is 10. Depreciation as per this particular one is equal to आपका remaining life divided by sum of year digit into cost minus salvage value, ठीक है. So it is आपका remaining life is 4 divided by sum of your digit is how much? 10 आपका, ठीक है, into cost is आपका 10,000, thus 9,000 is equal to, बताओ, ठीक है, जो भी आपका आउटकम है that is your answer. So what will be your outcome for this one, ठीक है. हाँ, PPB, Udit sir, I'll do it. Yeah, PPB, I guess I actually I'm not getting time to go through those particular one. If AFM, I guess they are already there, ठीक है. If not, I'll upload by tomorrow. I'll do it for both the one, ठीक है. So what will be the outcome? क्या होता है इसका outcome आपका? It is how much? 1800. Tanmay sir is saying आपका 1800 will be right answer, ठीक है. Or anyone else who want to comment on this numbers, ठीक है. No,
बी आपका, ठीक है, कितना आता है इसका आउटकम यार, 27 1800 कुछ अभी आपका, ठीक है, चलो हाँ 2000, ठीक है। सो दिस इज द वन, 2000 आपका, ठीक है, 2700. So 2700 is the outcome and this is your, if they'll ask you to calculate for third year, so let's say if you have to calculate for second year, ठीक है, this is for first year, तो first year depreciation is this. How you will calculate for second year? Second year is equal to remaining life is आपका 3 years, ठीक है, we have already calculated this, now this, ठीक है, so 3 divided by 10 into आपका 9000. For third year it is आपका 2 divided by 10 into आपका 9000. So this way you will be able to calculate for the remaining one also. ठीक है, yes yes हाँ 100% true श्रीकांत sir. So you all know what is depreciation. ठीक है, आपने अगर वो सेशन देख लिया कॉन्सेप्ट वाला तो आप like सब उसके बारे में जानते हैं, ठीक है. So depreciation is generally defined as decrease or a decline in the monetary value of an asset. Depreciation is usually accounted on capital goods, right? So it is charged on a profit and loss account, and we generally show depreciation as an ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह इसको ट्रीट किया जाता है और इसको हम लोग आपका रिफ्लेक्ट कहां पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है. So let's say we purchase a vehicle for our tour and travel company worth rupees, suppose that the cost is 25 lakhs, ठीक है, and after 1 year the asset value becomes, suppose that 20 lakhs. So this decline in value of worth rupees 5 lakh is generally known as, this decline in value is generally called depreciation, ठीक है, everybody knows about this, ठीक है. Why we calculate depreciation? To know the exact profit of the firm, ठीक है, or for the like with depreciation we create provision so we can replace this particular asset after useful life of this particular asset, right? So let's say the useful life of this asset is 10 years, तो 10 साल के बाद you have to replace that particular one, correct? तो ऐसे बहुत सारे uses, and to calculate depreciation what we require, जैसे कुछ चीजें आपकी होती हैं जैसे cost, सेल्वेज वैल्यू, यूजफुल लाइफ और द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये 3-4 चीजों से आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है. सो वी हैव 4 मेथड. वन इज द वेरी फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, we will study in this sequence itself, right? Then another one is we have written down value method, ठीक है, declining balance. Third one is unit of production, and the fourth one is sum of year digit method, right? So these are the 4 methods. Now out of these 4 methods, these 3 methods are very important one, right? Because as per Indian accounting standard 110 and 16, these 3 methods are permissible to Indian companies. एंड अगर आप क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सबसे इजी मेथड कौन सा है, सो माय आंसर इज स्ट्रेट लाइन मेथड. थ्रू आउट द पीरियड डेप्रिसिएशन अमाउंट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है. सो अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करते हैं, सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है अकाउंटिंग पर्पस के लिए, आपका टैक्सेशन पर्पस के लिए, सो माय आंसर इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है. सबसे एग्जैक्ट सटीक डेप्रिसिएशन कौन बताता है, तो माय आंसर इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है. मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर दे जनरली आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज 2 मेथड, ठीक है. सो रिटन डाउन वैल्यू मेथड एज वेल एज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स or methods which you will face in your examination, right? So though we are going to practice all the 4 methods and we will practice a number of set of questions in this particular session itself, so जहां से आपको फिर कोई भी challenge नहीं आएगा, ठीक है. तो we will start with our very first method or the simplest one, that is called straight line method. So very first question, which of the following is correct formula to calculate depreciation under straight line method? So straight line method is one of the simplest method to calculate depreciation, and the depreciation amount remain constant throughout the useful life of that particular asset. Let's say we purchase that vehicles worth rupees 25 lakh, ठीक है, एक हमने मशीन परचेज किया 25 लाख रुपए का, ठीक है, एंड सपोज दैट दिस इज द कॉस्ट, ठीक है. सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू is suppose that 5 lakh rupees and useful life is suppose that 10 years, ठीक है. So this is the situation आपका जो हमने like we purchase a machine and all, ठीक है. So if you have to calculate depreciation by using straight line method, ठीक है, जहाँ पे पूरे 10 साल आपका सेम अमाउंट से depreciation चार्ज होगा, so what formula you will apply? So depreciation is equal to cost minus salvage value divide by useful life, ठीक है, और which is also known as
economic life. So in our case, cost is 25 lakh minus this. So 20 divided by 10. So that means your depreciation will be 2 lakh. So depreciation first year will be 2 lakh and it is 10th year it will be 2 lakh. तो हर साल आपका जो depreciation होगा वो आपका same amount से charge किया जाएगा. ठीक है. So what is the formula? Cost minus salvage value divided by useful life. ठीक है. So cost of asset minus salvage value divided by useful life. ठीक है. So option B will be right answer for this particular one. Very simple. I hope सबको ये याद होगा और समझा भी होगा. बहुत हमने इसमें जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो ड्यूरिंग द कॉन्सेप्ट क्लासेस इटसेल्फ आई हैव एक्सप्लेन यू सम क्वेश्चंस और सम बेसिक एरियाज अबाउट दिस. ठीक है. सो नाउ वी विल क्विकली practice 3-4 questions. If they ask question based on straight line method, so what kind of question you may expect from this particular one? So first numerical, if an asset purchase 50,000 and salvage value is 5,000 and useful life is 10 years. So what is the annual depreciation by using straight line method? हो जाएगा solve. So what will be your correct answer? So depreciation is equal to cost, which is 50,000 minus 5,000 salvage value divided by 10. So that means 45,000 divided by 10 is equal to 4,500. Okay, so what will be our correct answer for this one? Option B will be right answer for this particular question. As simple as that. Next question. An asset cost is 80,000. Salvage value is 10,000. Useful life is 5 years. What will be the total depreciation over the asset's useful life by using straight line method, right? So अब देखो यहाँ पे क्या किया उसने, they are just asking कि what will be the total depreciation amount for the all the 5 years. ठीक है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कोई चैलेंज नहीं है. If you know for 1 year you can easily calculate this. So again depreciation will be आपका cost minus salvage value, so that is 70,000. ठीक है. 70,000 divided by 5, so आपका 12,000. ठीक है. सॉरी, अच्छा ओके, ये तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है ना. ठीक है. 12,000 भी नहीं. ठीक है. सो आपका व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? 70,000. कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, सिंपली यू कैन कैलकुलेट दिस. ठीक है. तो अगर एक साल का आपका, ठीक है, 70, अगर ये एनुअल डेप्रिसिएशन आपसे पूछता, ठीक है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन में भी आप इसका कैलकुलेशन कर सकते थे. बट उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, आपका एनुअल डेप्रिसिएशन ना पूछ करके आपको उन्होंने सिंपली आपका पूछ दिया है कौन सा, आपका ओवरऑल डेप्रिसिएशन. सॉरी, नॉट 12,000, 12,560, हाँ 14,000. ठीक है. सो 14,000 इंटू 5 इज इक्वल टू दिस. तो सिंपली आपका 70,000. ठीक है. चलो नेक्स्ट वन. इफ एन एसेट कॉस्ट 60,000, सैलवेज वैल्यू इज 5,000. कई केसेस में ऐसा होगा सैलवेज वैल्यू नहीं दिया रहेगा, so you have to assume salvage value is 0 for that particular asset. ठीक है. Estimated useful life is 10 years and the asset sold after 5 years for 25,000. ठीक है. What will be the gain or loss on this particular asset? आसान क्वेश्चन है. ठीक है. So first you have to calculate depreciation for 1 year into 5. Then आपका जो भी अमाउंट होगा उसको माइनस कर लेंगे, सिंपली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. सो 60,000 हमारा डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे इसका, इज इक्वल टू 60,000 माइनस 5,000. ठीक है, डिवाइड बाय आपका सैलवेज वैल्यू 10. ठीक है. दैट मींस कितना हो जाएगा आपका 55,000 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 5,500. ठीक है. सो 5,500, अब 5,500 इंटू 5. ठीक है. हमारा इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, 5,500 इंटू 5 इज इक्वल टू 27. टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो रहा है आपका इसके ऊपर 5 साल का. ठीक है. सो दैट हाउ विल कैलकुलेट टोटल डेप्रीशिएशन फॉर 5 इयर्स, क्योंकि 10, अच्छा ओके सॉरी, हाँ 10 इयर्स का हमने 10 ईयर का डेप्रीशिएशन इज दिस. अब अगर 5 ईयर का डेप्रीशिएशन जो ऑलरेडी हम चार्ज कर चुके हैं, ठीक है, सो 5 इंटू आपका कितना 5,500. ठीक है. 5,500, सो विच इज इक्वल टू 27,500. ठीक है. सो दिस इज द वन. अब कितने में एसेट बेचा गया है, ठीक है, सो दिस एसेट हमने कितने में सोल्ड आउट किया है आपका, सो एसेट बीइंग सोल्ड इन कितने में, सो एसेट सोल्ड आफ्टर 5 इयर्स इज 25,000. ठीक है, माइनस 25,000. ठीक है.
सो 25,000, तो आपका और कितने में खरीदा था? 60,000 में, ठीक है। तो सॉरी, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, आपका 60,000 60, अच्छा ओके, 55,000 55,000 55,000 माइनस टोटल एसेट इज 27,000, ठीक है, 27,500, सो इट इज इक्वल टू this ओके। सो अच्छा, इसका ऑप्शंस गलत हैं क्या? 7,000, ओके, कहीं तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। 27,500 माइनस 2,500 शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। सो हमने इसको लॉस में बेचा है एंड लॉस इज हाउ मच? 2,500, ठीक है। सो इट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि हमने, अब देखो क्यों ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि 27,500 का डेप्रीशिएशन अभी तक ऑलरेडी हो चुका है एसेट पे, ठीक है, और एसेट हमने आपका 25,000 में बेचा है, ठीक है। सो 25,000 में हमने एसेट को बेचा है, सो 27,500 प्लस 25,000, 25,000 ना, 52,800 और आपका 55,000, ठीक है। हाँ, सो 20 लॉस, मतलब ये इट शुड बी लॉस ऑफ 2,500, सो वी नीड टू करेक्ट दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो 2,500 का इसमें क्या होना चाहिए, आपका लॉस होना चाहिए, ठीक है। सो दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ है, इसमें भी आपका क्या लिखा है 7,500, ठीक है। सो 5,500 दिस इज करेक्ट, पर मंथ आपका जो रहेगा, ठीक है, पर ईयर का, into this 27,000 this book value at the end of 5 year is 60,000 minus this is equal to why 60,000, अच्छा ओके ओके, salvage value is also there ना, ठीक है। हाँ ओके, 60,000 माइनस दिस 32,000 इन, ओके ओके राइट, हमने ना सेल्वेज वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा एंड में आपका, ठीक है। हाँ, नाउ इट इज करेक्ट, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। सो इट विल बी 7,000 इटसेल्फ, ठीक है, बिकॉज इफ वी विल सेल दिस पर्टिकुलर वन देन वी आर नॉट गोइंग टू अचीव द सेल्वेज वैल्यू। अब समझ में आया केस क्या है, ठीक है। सो देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो देखो सिंपल सा आपका 60,000 60,000 माइनस 5,000 हर साल का डेप्रीशिएशन, ठीक है। सो 5,500 5 इयर्स के बाद हम एसेट को सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो 5 साल में डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू 27,500, सो 60,000 माइनस 27,500 बिकॉज दैट सेल्वेज वैल्यू अब हमें बेचने के बाद तो नहीं मिलेगा, सो दैट इज माइनस 25, अगर हम इसको करते हैं आपका 60,000 माइनस 27,010, सो वी विल रीच टू आपका कितने में 32,500, ठीक है। सो 32,500 एक्चुअल में बुक वैल्यू था, बट वी सोल्ड दिस पर्टिकुलर वन इन 25,000, ठीक है। दिस वाज द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5वें साल के एंड में ये था, माइनस 25,000, सो इट इज अ लॉस ऑफ 7,500। अच्छा क्वेश्चन था, देखो अब सिंपल मेथड भी कई बार हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, सो दिस इज द केस आपका। I hope everybody get this particular thing, that depreciation, that salvage value, ठीक है। So you are not going to achieve that salvage value because you are selling at 5th year, ठीक है, तो वो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। So these question was based on straight line method. Now we'll move toward the written down value method, ठीक है। So written down value method. Now how we calculate written down value method? It is similar to straight line method, but as per this particular method, asset can produce some higher number of output, or asset can give higher number of output during the initial years compared to others. So while we charge depreciation on our profit and loss account, initially we'll charge higher amount of depreciation and gradually will decrease that particular one, ठीक है। तो जो एसेट की वैल्यू होती है एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, जैसे आफ्टर एडजस्टिंग दैट डेप्रिसिएशन, लेट्स से देयर इज एन एसेट, सेम केस ले लेते हैं, ठीक है। सो वी परचेज दिस मशीनरी फॉर 25 lakh एंड salvage value is suppose that 5 lakh, ठीक है, and depreciation rate is, in case of written down value method, you have given depreciation rate, suppose that it is 10%. So for first year depreciation will be सिंपली आपका बुक वैल्यू
the cost minus salvage value is how much? 20 lakh. तो 20 lakh का 10%, ठीक है. So for first year it will be 20 lakh का 10%, ठीक है, which is 20,000, ठीक है. So which is 20,000. At the end of first year book value will be, sorry, 2 lakhs, ठीक है, my bad, ठीक है. So 20, it is 2 lakh. For first year depreciation will be 2 lakh. At the end of the first year book value will be remain 18 lakh, ठीक है. So 20 lakh minus 2 lakh, ठीक है. So now the book value of this asset is 18 lakh. So second year depreciation will be 18 lakh का 10%, which is 1.80 lakh, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग आपका कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है. सो द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, नो, the reduced balance of asset at each year. So B will be correct answer for this particular one, ठीक है. छोटा सा डिफरेंस है आपका. जैसे अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करते, सो योर डेप्रिसिएशन अमाउंट विल रिमेन 2 लाख फॉर ऑल दी 10 years, ठीक है, या जितना भी समय है जब तक वो जीरो नहीं होता. बट इस केस में क्या होगा? रिटन डाउन वैल्यू मेथड आपका डिक्लाइनिंग बैलेंस. सो द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दैट विल रिमेन आपका 20 लाख माइनस 2 लाख, सो विच इज 18 लाख. तो अगले साल इसमें, अगले थर्ड ईयर का अगर आप इसमें कैलकुलेट करते हैं, हाउ विल कैलकुलेट फॉर थर्ड ईयर? सो इट इज 18 लाख माइनस 1.80 लाख, विच इज इक्वल टू 16.20 लाख का आपका 10%, ठीक है, विच इज 1,62,000, ठीक है. तो इस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन निकल के आता थर्ड ईयर के लिए, ठीक है. सीक्वेंस को आपको समझना है आसानी से, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए. सो कोई भी चांस नहीं लेना, अच्छे से इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है. सो इफ एन एसेट विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीज एंड depreciation rate is 10% using written down value method, what will be the depreciation expense in the second year? निकल जाएगा सबसे अब, ठीक है. तो देखो क्या होगा, फर्स्ट ईयर आपका, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल चार्ज ऑन 10. अब देखो यहाँ पे सेल्वेज वैल्यू नहीं दिया है, तो वी विल अज्यूम सेल्वेज वैल्यू एज अ 0. तो 1 लाख आपका इसका कितना परसेंट डेप्रिसिएशन रेट रिमेन कांस्टेंट थ्रू द एसेट लाइफ, ठीक है. सो इट इज 10%, सो विच इज आपका 10,000, ठीक है. सो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 10,000. At the end of first year, asset value will remain 90,000. Why it is 90,000? 1 lakh minus 10,000. ठीक है. So second year depreciation will be 90,000 का 10%, ठीक है, which is equal to 9,000, ठीक है. So जैसे पहले साल हमने एसेट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी तो ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया, दूसरे साल आपका कम किया, ठीक है. सो इट विल रिमेन 9,000. अंडरस्टूड. तो सेकंड ईयर, आइए आपको कई बार ऐसे भी पूछ लेगा, व्हाट विल बी द एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर. सो हाउ विल कैलकुलेट? minus 9,000, so which is equal to 81,000. So second year, at the end of second year, asset value will remain 81,000. third year का निकालोगे तो 81,000 का 10%, which is 8,100. So in this particular case, what will be your correct answer? B will be right answer for this one. As simple as that. Next one. An asset purchased for 50,000, depreciation is 10%. Depreciation rate under written down value method, ठीक है. So what will be the value of asset at the end of first year? तो अब यहाँ पे एसेट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है. सो क्या होगा? डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 50,000 का 10%, ठीक है. सो विच इज इक्वल टू आपका 5,000, ठीक है. एंड एसेट वैल्यू, सो माइनस 5,000 is equal to 45,000. So that will be your answer for this particular question, ठीक है. So 45,000. अगर वो पूछता सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन तो 45,000 का 10%. So this way, if you'll practice this particular one, you'll not make any mistake in your upcoming examination. I hope you're getting this particular point clearly. Please mention do yes or no in the comment section. And if you have any doubt, please feel free to ask. ठीक है. So now this is your homework question. ठीक है. This is a simple question again. ठीक है. If you want to solve me out, I'll solve it. चलो, no problem. ठीक है. An asset value is 80,000. Salvage value is 8,000. ठीक है. So depreciation base is equal to cost minus salvage value, which is आपका 80,000 minus 8,000. So it is 72,000. ठीक है. So 72,000. Depreciation rate is 15% under the written down value method. What will be the depreciation in third year, assuming the depreciation rate is applicable to the written down value method? So we will be able to solve this particular one. ठीक है. So
फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 72,000 इंटू आपका how much 15%. ठीक है, so whatever value will achieve, so we have to, let's say whatever x value will achieve, so we have to minus this x. Then second year depreciation will be this x into 15%. ठीक है, so whatever value you achieve, let's say y, so you have to minus that particular one from this x. ठीक है, so now whatever value third year depreciation, how we will calculate again? So whatever, let's say we reach to z, so z at the rate of 15%, whatever value will achieve ABC, so that will be your answer for this particular question. Please do calculate this particular one and do mention into the comment section. Okay, this is your homework question. Again, this is the homework question, guys. Very simple one. Okay, so I hope now you will be able to solve these type of question. See, ये ना थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से इनको अगर ट्राई करोगे, तो तभी वो चीजें आपको ना, अगर डिफिकल्टी आएगा कुछ भी ऐसा होगा, तो वो आप मुझे बता पाएंगे. ठीक है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने बहुत प्रैक्टिस भी किया तो उनको समझेंगे. अब हम लोग शिफ्ट होते हैं आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड. आफ्टर दैट वी विल प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, सो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड. ठीक है, सो जैसे आपका प्रीवियस टू मेथड वो जनरली बेस्ड ऑन पासेस ऑन टाइम. ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन मेथड एज वेल एज your written down value method. Unit of production method is basically use based method, actual use based method. Let's say we purchase a machine. ठीक है, हमने एक मशीन, एक प्रिंटिंग मशीन, हमने एक प्रिंटर आपका परचेज किया. वी परचेज अ प्रिंटर वर्थ रुपीज सपोज दैट 1 lakh. ठीक है, and the capacity of this printer is, lifetime capacity is suppose that it can print 10 lakh unit. ठीक है, salvage value is suppose that 10,000. ठीक है, so this is the information about the machine. Now during first year the actual production, ठीक है, the actual production or uses was, suppose that out of this 10 lakh unit we produce 3 lakh unit. ठीक है, second year suppose that actual uses of this asset was, suppose that 5 lakh unit. ठीक है, third year suppose that third year it was 1 lakh unit. अब देखो क्या होता है यूज बेस. ठीक है, अब यहाँ पे if you see the examples, in first year we used 3 lakh unit, second year 5 lakh, third year 1 lakh. So in case of this second year where we will be charging highest number of depreciation, highest amount of depreciation, and in case of third year we have minimal use, सिर्फ 1 लाख यूनिट ही हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट होगा. हाउ यू विल कैलकुलेट डेप्रीशिएशन? सो डेप्रीशिएशन इज बेसिकली, हाउ यू कैलकुलेट डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू एक्चुअल यूज डिवाइड बाय lifetime capacity into cost minus salvage value. ठीक है, so you have the formula. Now you can easily calculate this particular one. That means how you calculate for first year, 3 lakh divide by actual uses is how much? Lifetime capacity is 10 lakh into cost is 1 lakh minus salvage value is 10,000, 90,000. ठीक है, so whatever outcome, that is your answer for first year. Second year answer will be, second year how you will calculate? It is 5 lakh divided by 10 lakh into 90,000. So that will be your answer for second year. So this is the way. ठीक है, एक्चुअल यूजेस, जैसे इसका अमाउंट ज्यादा आएगा तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने ज्यादा यूज किया है, तो जितना, इसका मतलब यह है कि वी आर स्पेंडिंग 90,000. ठीक है, हम 90,000 रुपए खर्च करें क्योंकि 10,000 रुपए में मिल जाएगा वापस सेल्वेज वैल्यू में. ठीक है, सो वी आर स्पेंडिंग 90,000 टू अगेन और टू प्रोड्यूस 10 लाख यूनिट. अब उस 10 लाख में से पहले साल हमने 3 लाख यूज किया, दूसरे साल 5 लाख, फिर अगले साल 1 लाख, लेट्स से 5, 8, 9, जो फोर्थ ईयर है उसमें भी हमने 1 लाख. तो इस तरीके से 4 साल में आपका जो आउटकम होगा. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन बेस्ड ऑन, तो कैसे होगा? द कॉस्ट ऑफ एसेट, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, नो the total unit of production expected from an asset. So what will be your correct answer for this one? Option C will be right answer for this particular question. Understood? Yes or no guys? अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट लिखिए. ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन, if an asset costs 60,000 and scrap value is 5,000, that means depreciation base is 55,000, lifetime capacity is 1 lakh unit over the life, what is the depreciation per unit
अंडर द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इट इज सिंपली आपका कैसे हो जाएगा, सो हाउ वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल यूजेस डिवाइड बाय लाइफ टाइम कैपेसिटी इनटू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू। बट इस केस में हमें पर यूनिट निकालना है, सो हमारा क्या होगा 1 लाख इंटू आपका कितना 1 लाख इंटू 0.55 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। 50 सिंपली हम लोग इसको कर सकते थे ना यार, 55,000 डिवाइड बाय 1 लाख, सो इट इज इक्वल टू 0.55। थोड़ा मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। सो 0.55 विल बी राइट आंसर पर यूनिट डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्यों 0.55, देखो आपका डेप्रिसिएशन बेस इज इक्वल टू 55,000, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ कॉस्ट वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन 1 लाख यूनिट। तो आपका 55,000 डिवाइड बाय 1 लाख अगर हम लोग करेंगे, सो इट इज इक्वल टू 0.55। सो इट इज द आंसर फॉर दिस वन। बेसिक कैलकुलेशन, सॉरी यहाँ, और मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, तो आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। इफ एन एसेट अंडर द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड produce 15,000 unit in the first year, 20,000 unit in the second year, and 10,000 unit in the third year. What is the total depreciation for the first year if the depreciation per unit is 0.55, ठीक है। सो ये तो सिंपल ही निकल जाएगा, आप इसको मतलब हम लोग 15,000 इंटू 0.55, तो पहले ईयर पहले साल का आपका, ठीक है। सेकेंड ईयर आपका क्या होगा, इट इज आपका 20,000 इंटू 0.55, ठीक है। एंड थर्ड ईयर इट इज इक्वल टू आपका कितना 10,000 इंटू 0.55, ठीक है। सो इट इज द आउटकम विल बी योर आंसर, ठीक है। सो कितना होता है 7,000 और समथिंग, ठीक है। सो 15,000 into 0.55, so it is equal to 8,250. So first year it will be 8,250. Second year का amount अगर हम निकालते हैं, so it is 20,000 into 0.55, so it is equal to 11,000, ठीक है। So for second year it is 11,000. Third year आपका क्या होगा 10,000 into 0.55, so it is 5,500, ठीक है। So 5,500, तो ये, so this is the calculator which is allowed in your examination, 12 digit calculator हम इसको बोलते हैं आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो next question guys, if an asset cost 50,000 and salvage value is 5,000, expected production is 1 lakh, what is the depreciation third year if 12,000 unit were produced during this particular one? निकल जाएगा, सबसे सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। So depreciation is equal to actual uses, how much 12,000 divide by lifetime capacity is how much 1 lakh into cost minus salvage value, cost is 50,000, this तो 4,500, ठीक है। So 4,500, so outcome will be your answer, कितना होता है, so 12,000, sorry 12,000 divided by 1 lakh, this 0.12 into 4,500, so it is 540, हाँ कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा ओके 45,000 है, सॉरी 45,000, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी गलतियां होंगी गाइस, सो 0.12 into 45,000, so it is 5,400, फिर भी कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है फॉर श्योर। एसेट इज 50,000, 45,000 हो जाएगा, ठीक है। and 1 lakh unit it can produce 1 lakh unit, and depreciation for third year is 12,000, ठीक है। अच्छा ओके, depreciation for third year is 12,000, okay 12,000 units were produced in the third year, ठीक है। we have to calculate depreciation for third year, so it should be, there is some problem with the answers I guess, अगर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है। 4,000 आपका आंसर क्या आना चाहिए इसका 5,400, ठीक है। सो 5,400 विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो वी हैव टू ऐड ऑप्शन ई, जो आपका ये होगा, ठीक है। दीज ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ठीक है, फॉर श्योर दे आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपका ये जो गलत जाएगा। नेक्स्ट वन गाइस, an asset was purchased for 80,000 and has an expected production of 1,60,000 unit over the this,
Residual value is this. What is the depreciation expense for the first year? 20,000 units were produced. ठीक है, so यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 20,000 useful life, so depreciation will be equal to 20,000 divide by आपका 20,000 depreciation expense for third year. ठीक है, so 20,000 divide by 1,60,000. ठीक है, into cost is 80,000 minus salvage value is this, so it is 72,000. So it is equal to 9,000. ठीक है, so equal to this. So what will be our correct answer? 9,000 ऑप्शन ए. ठीक है, तब देखो हमने ये सेम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया, पिछले क्वेश्चन पे हमने ऐसे सॉल्व किया था बट ऑप्शन ही नहीं थे. ठीक है, so this is the one where we achieve this one. ठीक है, तो कई बार आपका मतलब मे बी दैट कैलकुलेशन आपका ये जो ऑप्शन है दैट आई पुट रॉन्ग. ठीक है, तो इस तरीके से आपका रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन. अब ये सॉल्व हो जाएगा सबसे. आई नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, एन एसेट कॉस्ट 1 लाख, रेसिडुअल वैल्यू इज 10,000, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज 50,000, unit produce 5,000. So this is your homework question, guys. I believe कि you guys will answer these particular question in the comment section. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अगर रॉन्ग भी है तो आप अपना आंसर्स आपका कमेंट्स में लिख के बताइएगा. ठीक है, ABC 1st January 20 ABC limited purchase of machinery worth rupees 1 lakh, spent 4,000 on its carriage, 8,000 on its installation, useful life is 10 years, scrap value is 12,000. What is the depreciation value using straight line method? So what will be your correct answer? So cost, here we have cost is equal to purchase cost. ठीक है, so आपका जो cost होगा इसमें you have to add these cost. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.12 लाख. कॉस्ट आपका 1.12 लाख क्यों हुआ? बिकॉज दीज आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एज पर प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. यू हैव टू ऐड दीज पर्टिकुलर वन. ठीक है, सेल्वेज वैल्यू इज हाउ मच? आपका 12,000. सो डेप्रीशिएशन बेस इज इक्वल टू 1 लाख. सो नाउ वी नो हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीशिएशन बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. सो इट इज आपका कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय your useful life. So 1 lakh divided by 10, it is 10,000. So what will be our correct answer for this one? Option B will be right answer for this one. ठीक है, so 1 lakh divided by 10 is equal to 10,000. ठीक है, so it is cost minus salvage value divided by useful life. Next one, XYZ manufacturing purchase a specialized piece of equipment worth rupees 5 lakh. The equipment is expected useful life of 8 years and salvage value is 50,000. First, we will calculate depreciation base. Very nice question, guys. Please pay your attention. So it is 5 lakh minus 50,000. So that is 4.50 lakh. So you have to calculate depreciation on this first thing. The company used declining balance, which is means written down value method for calculating depreciation at the rate of 20%. At the end of third year, the company decided to switch to the straight line method. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. ठीक है, तो 8 लाइफ इस एसेट का जो यूजफुल लाइफ है, ठीक है, दैट इज 8 years, जिसमें से what you have to do for first 3 years. ठीक है, 3 years you have to calculate depreciation by using written down value method, and for remaining 5 years it will be through डेप्रीशिएशन विल बी कैलकुलेटेड थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड. तो क्या होगा, जो आपका एसेट की वैल्यू आएगी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, सो दैट इज डिवाइडेड बाय 5. दैट विल बी डेप्रीशिएशन फॉर 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर एज वेल एज 8th ईयर. आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सो द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन वाज डिसाइडेड टू बी चेंज विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. पिछले उसमें हम पिछले 3 साल का कैलकुलेशन इसी के हिसाब से रहने देंगे. व्हाट विल बी द डेप्रीशिएशन एक्सपेंस फॉर द 5th ईयर? तो यहाँ पे 5वां साल. अगर आपको 4था साल भी पूछता है, 7वां भी पूछता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, सेम आपका होता है. नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस? फर्स्ट ईयर आपका सो 4.50 लाख एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है डेप्रीशिएशन? 20%. ठीक है, सो 20%, सो विच इज इक्वल टू कितना होता है 4,500 और 9,000. ठीक है, 9,000 आपका. ठीक है, सो 9,000 ही होगा ना, 4,50,000. ठीक है, सो 10% इज 4,500, 9,000. ठीक है, सो सेकेंड ईयर, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं?
हाँ 9,000, ठीक है। सो सेकेंड ईयर आपका माइनस 45 4,50,000 4,50,000, ठीक है। सेकेंड ईयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू विल बी 4,50,000 minus 9,000 is equal to, sorry, 3,06,000. 4,41,000, सॉरी, ठीक है। 4,41,000 into 0.2. So second year depreciation will be, second year depreciation into 20%, 0.2 is equal to 88,000. It should be 90,000, guys, sorry, 90,000, ठीक है। So 90,000, ठीक है। So it is 90,000. So now 4,45,000 minus 90,000, which is equal to 3,60,000, ठीक है। I have to make some correction. So ये कितना होगा आपका? So it will be 3,60,000, ठीक है। So 3,60,000 into 20 into 0.2 is equal to, second year depreciation will be 72,000, ठीक है, minus, now we have to minus 3,60,000 minus 72,000 is equal to 2,88,000. At the end of second year, asset value is 2,88,000, right, into 0.2, so it is equal to, third year depreciation is equal to 57,600, ठीक है। So 57,600, that means option B will be right answer, and asset value at the end of third year will be 2,88,000 minus 70. ठीक है, देखो छोटा सा मतलब क्वेश्चन सेम ही है। अच्छा सॉरी, नाउ दिस इज नॉट आवर आंसर, बेसिकली आई मिस दैट पॉइंट, ठीक है। अभी तक हमने इसको सिर्फ सॉल्व किया है, ठीक है। सो एस्टेट वैल्यू, नाउ वी हैव टू माइनस दिस वन ऑल्सो, ठीक है। सो 2,88,000 minus 57,600 is equal to 2,31,000. So third asset value at the end of third year is 2,31,400, right? So divide by 5 if you do it, so 46,080 or something. So option A should be right answer for this one, ठीक है। तो देखो अब देखो क्या था, एक छोटा सा हैक आपका, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, very very important question. If examiner will come up with this particular question, they are definitely going to give you 2 marks, ठीक है। It's a 2 marker question, clear cut. So with one question itself they are asking or they are checking your both the concept, ठीक है। तो पहले first 3 years, in this particular case for the first 3 years we are using our straight line written down value method. At the end of the asset we reach to asset value was this, ठीक है, at the end of third year, or it is something around this, ठीक है, calculation अगर कुछ होगा। And now for remaining 5 years we are charging straight line method, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इसी के हिसाब से आते हैं ना, आपका आंसर ये हो रहा था, गड़बड़ हो रहा था इसलिए, ठीक है। तो now the question not end here, ठीक है। So we have 2,31,400, whatever the remaining the 23 lakh 14,000, ठीक है, it is 23,14,000. So at the end of the third year, so divide by आपका जो भी यूजफुल लाइफ है, ठीक है। सो इफ यू डू इट सो यू विल रीच टू द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट ईयर इट इज आपका 90,000, ठीक है। सेकेंड ईयर डेप्रीशिएशन इज आपका 72,000, ठीक है। सो माइनस दैट वन, सो 2,88,000, तो इफ यू रीच टू 57,600, ठीक है। सो डेप्रीशिएशन वैल्यू फॉर द फोर्थ ईयर इज 20% ऑफ 2,88,000, which is the remaining or useful life of the asset at the end of third year. तो उसके हिसाब से हम इसको लेके चलते हैं। So you can simply divide or do the multiplication with 20%, so you'll reach to this particular number. Understood? Yes or no? थोड़ा सा दोबारा से देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड इवन ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिस और I'll
कम अप विद मोर क्वेश्चन, या मॉक टेस्ट में आई विल पुट दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे डाले हुए हैं और भी आपका डाल देंगे तो जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। XYZ purchase of machinery worth rupees 80,000 on January 1st, 2018. The machine has estimated useful life of 5 years and estimated residual value is 10,000. Okay? So depreciation base is 70,000, useful life is 5 years. The company used written down value method for depreciation, so there is no use of useful life. Depreciation rate of 20%. ठीक है, सो कैलकुलेट डेप्रीशिएशन फॉर थर्ड ईयर, ये निकल जाएगा सबसे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट ईयर आपका इट इज डेप्रीशिएशन बेस इज 70,000, सो 70,000 का एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 14,000, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14,000। At the end of first year, asset value will be minus 14,000, so it is equal to how much? आपका 56,000, ठीक है, 56,000 आपका, ठीक है, 60/70, ठीक है, सो इट विल बिकम आपका 56,000 का सेकेंड ईयर डेप्रीशिएशन। इफ यू कैलकुलेट सेकेंड ईयर डेप्रीशिएशन, इट इज एट द रेट ऑफ दिस, सो 20%, सो इट इज 5600 का डबल। नाउ आई विल यूज कैलकुलेटर, थोड़ा सा मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है, into 20,000.2, so it is 11,200. Second year depreciation will be 11,200. So 11,000, now 56,000 minus 11,200 is equal to, so asset value, if you minus this value, so asset value at the end of second year is 44,800, ठीक है, so इसका 20% is how much into 0.2, so it is 8,960, so this will be our answer for this one, ठीक है। yes, हमें क्या पूछा गया है, एट फॉर डेप्रीशिएशन फॉर थर्ड ईयर। अगर वो आपको एसेट वैल्यू पूछता है, डेप्रीशिएशन एसेट वैल्यू फॉर दी थर्ड ईयर या सेकंड ईयर, सो सेकंड ईयर में आपका ये होगा, थर्ड ईयर में आपका 10 माइनस 10, सो दैट विल बी योर एसेट वैल्यू फॉर द 10, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Asset purchase a company 20,000 and for every rate of depreciation of 20%, what will be the depreciation for third year by using written down value method? निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। So 20 first year depreciation will be, there is no salvage value, so to 20,000 at the rate of 20%, so which is equal to 4,000, ठीक है, minus 4,000, asset value will be 16,000, ठीक है, so asset value at the end of first year is 16,000, second year depreciation is 16,000 into 20%, which is equal to 3,200, ठीक है, so आप asset value at the end of this is 3,200 minus is equal to कितना होता है 11,800, ठीक है, so 11,800, so 11,800 into 20 और 20%, ठीक है, 11,800 into 0.2 is equal to 2,360, मतलब हमने कहीं पे गड़बड़ किया है आपका कैलकुलेशन में, ठीक है, कैलकुलेशन एरर्स कहाँ पे है देख लेते हैं। 16,000 यहीं पे मेरे को लग रहा है 16,000 माइनस 3,200, 12,800, ठीक है, सो इट इज 12,800, ठीक है, सो 12,800 into 0.2 is equal to 2,560, ठीक है, 2,560, so D will be right answer for this one, ठीक है। so asset value at the end of second year जो हमने गलत कैलकुलेट किया था, it is 12,800, ठीक है, so into आपका 20% means into 0.20, so it is equal to 2,560, ठीक है, so this way you'll reach to the enders, ठीक है। कैलकुलेशन में आप लोग गलती नहीं करेंगे, आई बिलीव दैट कि आप लोग मतलब पूरा प्रैक्टिस किए हैं इसके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी कंपनी परचेज अ मशीन दैट कैन मैन्युफैक्चर 20 लाख प्रिंट आफ्टर इट विल हैव टू बी स्क्रैप, द परचेज कॉस्ट इज 1,10,000, salvage value is 10,000, during first year of production they produce 2 lakh print, so by using unit of production निकल जाएगा, so actual use, ठीक है, so depreciation is equal to actual uses is how much 2 lakh, lifetime capacity is how much 20 lakh into cost minus salvage value, cost is 1,10,000, salvage value is 10,000, ठीक है, so 1 lakh, ठीक है, so आपका 0.2
So 10,000, 0.1 into 0.1 into 1 lakh, so it should be 10,000. So what will be our correct answer for this one? 10,000 will be right answer for this one. Unit of production. Okay. Next one. Company X, a manufacturing company that specializes in producing electronic devices, they recently purchased a new machine 2 lakh, enhance their capacity. The machine has estimated useful life of 5 years and 1 lakh unit, right? During the first year, so capacity is 1 lakh. During the first year, company X produced 15,000 units using new machine. The estimated salvage value is 20,000. तो आपको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? सो एक्चुअल यूजेस ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, ठीक है, कितना हमने किया है? 15,000. सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 15,000 एक्चुअल यूजेस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर, देन डिवाइड बाय कैपेसिटी 1 lakh, ठीक है, इनटू कॉस्ट इज 2 lakh माइनस सैलवेज वैल्यू इज 20,000, 1.80 lakh. So if you'll solve this particular equation, you'll reach to your outcome. ठीक है. So 15,000 divided by 1 lakh is 0.15 into 1,80,000. So it is equal to 27,000. So 27,000 है हमारे options में, ठीक है. Yes. So option 2 will be right answer for this particular one. Understood? तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है. नाउ आई विल नॉट लेट यू नो. अच्छा ओके, दिस इज बेस्ड ऑन सम ऑफ ईयर डिजिट, ठीक है. सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड देखो कुछ नहीं होता है, छोटा सा गेम टाइप का है, ठीक है. सुडो को सॉल्व करते हैं वैसे. तो यहाँ पे सबसे बड़ा गेम है आपका, यू हैव लाइक हाउ वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ठीक है. सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट इनटू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, ठीक है. रिमेनिंग लाइफ इज लाइक जैसे पहले लेट्स से आपका दिस इज आर 5 years, ठीक है. पहले साल का डेप्रिसिएशन करोगे तो 5 साल का, फिर 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, इस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे. 8 years होगा तो आपका 8, 7, 6 इस तरीके से हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है. सो अब यहाँ पे जैसे यूजफुल लाइफ इज सपोज दैट 8 years, तो इसका सम ऑफ ईयर डिजिट कैसे निकालेंगे? सो सम ऑफ ईयर डिजिट इज इक्वल टू 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, ठीक है. इस डायरेक्शन 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो, बट इस डायरेक्शन में लिखोगे तो गलतियां नहीं होंगी, ठीक है. सो टोटल इज इक्वल टू 36, ठीक है. तो आपका कितना हो गया? सो सम ऑफ ईयर डिजिट इज 36. अब पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आपका 8 डिवाइड बाय 36, रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय आपका सम ऑफ ईयर डिजिट इनटू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू. सेकंड ईयर का निकालोगे, सेकंड ईयर के लिए आपका इस डायरेक्शन में लिखोगे तो जब फर्स्ट ईयर हमने यहाँ पे, सेकंड ईयर आपका 7 डिवाइड बाय 36 इनटू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है. तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर यूजिंग द सम ऑफ ईयर डिजिट. हम इसको 1 2 3 क्यों नहीं लिखते हैं? मतलब आप चाहो तो लिख सकते हो, बट क्या होगा ना, जल्दीबाजी में कई बार अगर आप उठाओगे फर्स्ट ईयर का तो आप फर्स्ट मतलब 1 डिवाइड बाय 36 कर दोगे तो वो डेप्रिसिएशन बहुत कम, मतलब वो रिवर्स कर देगा. इस मेथड में भी क्या होता है, इनिशियली डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया जाता है, आपका एंडिंग ईयर्स में कम होगा क्योंकि 8 डिवाइड बाय 36. और अगर आप 1 2 3 में लिखोगे ना जल्दीबाजी में, आपने 1 डिवाइड बाय 36 फॉर फर्स्ट ईयर कैलकुलेशन कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे आपका इक्विपमेंट कॉस्ट 1 लाख, रेसिडुअल वैल्यू 20,000, सो डेप्रिसिएशन बेस इज इक्वल टू 80,000, ठीक है. नाउ आपका एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years, तो हम 5 years का सम ऑफ ईयर डिजिट कितना होगा? इट इज इक्वल टू 15 years, ठीक है. 15 years क्यों होगा? आपका जैसे 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 5 9 12 14 15, ठीक है. सो 15 years आपका. तो अब हमें कौन सी ईयर का कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर? तो आपका 5 डिवाइड बाय 15 विच इज आपका इनटू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू 80,000. सो 0.333 इनटू 80,000 इज इक्वल टू कितना होता है? ठीक है. सो 0.33 क्यों? मतलब 5 डिवाइड बाय 15 is equal to 0.3333 into 80,000. So it is equal to 26,666. ठीक है. So option 2 will be right answer for this particular one. बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट वन, 5 years फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड. तो आपका क्या था? 5 डिवाइड बाय 15 रिमेनिंग लाइफ एंड आपका यूजफुल सम ऑफ ईयर डिजिट, ठीक है, 15, ठीक है.
5 ईयर का सम ऑफ ईयर डिजिट विल बी 15। तो इट इज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई आपका 3 भी लिख सकते हैं, या हम इसको आपका 0.33333 भी आपका लिख सकते हैं, ठीक है। सो 1 डिवाइड बाई 3 विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट वन, नाउ आई विल गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज डू ट्राई दिस वन एंड ट्राई टू आंसर, ठीक है। सो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर यूजिंग सम रिटन डाउन वैल्यू मेथड, कॉस्ट इज 20,000, डेप्रिसिएशन रेट इज 10%। बहुत ही आसान है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 20,000 into 10%, ठीक है, which is 2,000, ठीक है। At the end of first year, asset value will remain how much? 18,000. Why 18,000? 20,000 minus 2,000, ठीक है। Second year depreciation will be 18,000 into आपका what percent? 10%, 10%, ठीक है। So 10% is equal to 1800, ठीक है। So 1800 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर के एंड में पूछा है, तो ऐसे आने वाले समय के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अंडर, अब देखो यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछा गया था अक्टूबर 23 के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज द लाइक देयर वाज अ सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। सो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द एक्चुअल यूजेस ऑन द एसेट, नॉट बेस्ड ऑन द पासेस ऑफ टाइम, सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये भी हो सकता है या कंपैरिजन भी हो सकता है, जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमारे हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, ठीक है। हाउ मेनी मेथड्स कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 एंड 116। सो क्या थे? 3 मेथड। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन मेथड, आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसीलिए इनके ऊपर सबसे ज्यादा बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपको इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, 110 आपका N16, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, as there are many causes of depreciation like wear and tear causes this, what is efflux effect, ठीक है। so depreciation क्या होता है, जैसे asset value was आपका 20 lakhs, it become आपका suppose that 18 lakh at the end of that year, ठीक है। अब ये इसका वैल्यू कम होने के पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं? हमने उस कार को यूज किया, उस पर कोई डेंट लग गया या अदर्स कुछ ऐसा, ठीक है। एक रीजन आपका होता है that is known as efflux effect. Efflux effect means that is on the basis of passes on time, ठीक है। मतलब ये एसेट क्या हुआ, जैसे हमने एक लैपटॉप खरीदा कंपनी के पर्पस के लिए, हमने उस लैपटॉप का सील भी ओपन नहीं किया था, एज इट इज उसको रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स से वी परचेज दैट लैपटॉप फॉर 10 लाख, और आपका 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 8 लाख, ठीक है। अभी वो सील्ड पैक है, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए लिया है, उसका वैल्यू कम होगा ड्यू टू पासेस ऑफ टाइम, ठीक है, पासेस ऑन टाइम, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि आपने उसको यूज नहीं किया फिर भी उसकी वैल्यू कम होगी, दैट इज नोन एज इफ्लिक्स इफेक्ट, ठीक है। सो एंड इन्वेंशन और परमानेंट चेंज ऑफ डिमांड, हाँ, सो ऑप्शन मेयर पासेस ऑफ टाइम fall in value of an asset even it is not in use, right? So that is the one, please do remember this terminology, ठीक है। So causes, next one, which of the following given reason is need for depreciation? तो स्टार्टिंग में provision for the replacement, know the correct profit, ठीक है। तो जैसे हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, जैसे हम ये टूर एंड ट्रेवल की कंपनी चला रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर द डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट वाज 5 लाख, और हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू था दैट वाज 15 लाख। सो यू हैव टू माइनस दिस वन, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ 15 लाख माइनस 5 लाख 10 लाख का आपका प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्ट है, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यू हैव टू एडजस्ट दैट पर्टिकुलर वन। शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, अगर ऐसा करोगे तो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन आएगा। टू एस्टिमेट, हाँ, इन सम केसेस वी आल्सो यूज फॉर, जिससे हमें स्क्रैप वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। सो ऑल 1 2 3 आर करेक्ट, ठीक है। सॉरी, क्या ढूंढना था मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉरी गिवन इज नीड फॉर डेप्रिसिएशन, तो आई विल गो विद 1 2 3, अगर हम इसको एलिमिनेट, सो द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। सो ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर इन दिस केस, ठीक है, अगर ये इसको नहीं रखना चाहता, बट हम कुछ केसेस में अगर चाहें इनडायरेक्टली वी कैन आल्सो कैलकुलेट दिस वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन गाइस, ओके दिस इज इट। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट योर डेप्रिसिएशन, द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच एग्जामिनर has asked in the previous examination as well as some expected questions. So if you are comfortable with all these particular questions, now you do not need to worry about this particular topic, okay? तो कैसा लगा सेशन, जल्दी से आपका एक बार कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा, एंड इफ यू हैव सम क्वेरीज
please feel free to share those particular queries. And if you need any additional help from our side, so this is my Telegram group, so you can join this particular group and you can ping me there. And if you need any help guys, feel free to ask, ठीक है? तो पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करने के लिए हमारे पास, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं एंड ऑल. तो first attempt, in a single attempt, we will make sure कि you will be able to clear this examination if you will follow these particular instructions, ठीक है? Concept videos मैंने आपके लिए कंपाइलेशन भी करके रिलीज किया है. रीजन ये है कि ठीक है, अगर आपको एक एक यूनिट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें करते रहता हूँ, JIV CIV सर्टिफिकेशन एंड ऑल, ठीक है? तो कंपाइलेशन वीडियोस हैं, उनको देखिए, ठीक है? जहां तक आपने देख लिया उस पर कमेंट मेंशन कर दीजिए, अगले बार अपने कमेंट से पिक करके आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं अगर एक बार में नहीं देख पा रहे हो. इस तरीके से भी आपका किया जा सकता है. दूसरा, पहले उनको कॉन्सेप्ट को एक बार गो थ्रू करें. जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो वहाँ पे किया गया. कॉन्सेप्ट्स आर मस्ट, ठीक है? विदाउट कॉन्सेप्ट आई विल नॉट सजेस्ट फॉर एनी एग्जामिनेशन. रीजन बीइंग कि इफ दे कम अप विद सम काइंड ऑफ चेंजेस और इफ दे इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल, so you will not face any kind of difficulty during your examination, ठीक है? So that is must. First go for A, at least go for module A and B. तब तक आपका ये हो जाएगा, तो then you will get some time. वीकेंड पे आप C और D भी देख सकते हैं कभी भी, ठीक है? तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आपका जाएं, वो ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको देखें. देन यूनिट वाइज आपका जो सेशन है उनको आपको देखना है, ठीक है दोस्तों? तो उस सेशन को लाइक जरूर करें. अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है? एंड फॉर कोर्सेज और mock test and PDF, you can visit to our website as well as our application. So this is it from my side. Thank you for joining this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.